Hello kids, welcome to Anudeep Your Study Buddy. So, we have completed three parts of integers which are basics of integers and it will help you in your school studies. But for competitive exams, we need few more information, few more facts to be learned about integer because it's a competitive exam. So now in part 4, what I am going to do is I will be covering few facts of integers which you will require to appear for competitive exams like IPM and Olympiad. Once I clear those concepts, I will solve the solved examples. So part 4 will again have some concepts and solved examples. Then part 5 and 6, I will be doing all the problems related to integers. Important facts जानना जरूरी है. So you should be knowing natural numbers. Okay. Then whole number. Natural number starts with 1. Whole number starts with 0. You know what is even number, odd number, composite and prime number. Now, we will learn the concept of opposite number. There are some numbers such that when we add them, we get result 0. Okay. So, यहाँ पे इन्होंने दिया है -1 + 1. We can have any number. -7 + 7, right? This is 7. -7 + 7 is 0, right? So, ऐसे number को हम कहते हैं opposite numbers. So, opposite numbers can be, suppose if I say 121. So, what will be the opposite number of 121? -121. Okay. The number 0 isn't simply integer. It is neither positive nor negative. Just remember this. It is not positive भी नहीं है, negative भी नहीं है. Next, number line. अब नंबर लाइन में ये आप याद रखिए कि ये राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड. और किसी भी नंबर लाइन में आप जब टुवर्ड्स राइट साइड जाते हो, आप नंबर की वैल्यू इंक्रीज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप 0 से 1 पे जाते हो, आप 1 ऐड करते हो. 1 से आप 4 पे जाते हो तो कितने ऐड किए? 1 2 3 आप ऐड करते हो. बट व्हेन यू गो टू द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज गए, तो हम वैल्यू डिक्रीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 4 से हम 3 पे गए, हमारी वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज बाय -1. 4 से हम वैल्यू सपोज 0 पे गए तो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. तो इतना आपको याद रखना है. व्हेन ऑन द नंबर लाइन, व्हेन यू गो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, your number value increases. When you go left hand side, number value decreases. अब यहाँ पे जो A और B दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, पर लेट्स अंडरस्टैंड. Every integer is greater than to all integers which are present on the left side of the integer. Every integer, let's take integer 2. Every integer is greater than to all integers. किस integers से बड़े हैं? Which are present on the left side of the integer. 2 के left side में कौन से हैं? 1, 0, -1, -2, -3, -4. So, every integer is greater than to all integers which are present on the left side of the integer. So here I will say -4 is less than 2 because -4 lies on the left hand side. Next, every integer is smaller than all integers which are present on the right hand side of the integer. Every integer is smaller. For suppose, let's take -3. -3 is smaller than all integers. किस इंटीजर से स्मॉलर है? विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड. तो इसके -3 के राइट हैंड साइड पे कौन से इंटीजर्स है? -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स. सो -3 राइट इज लेस देन -1. अब यहाँ पे अभी तक आप जब भी देखते थे आपको क्या बताया गया है? 3 इज ग्रेटर देन 1. पर यहाँ पे जब हम निगेटिव में करते हैं तो पूरा अपोजिट हो रहा है. -3 is less than -1 because -3 is on the where? On the right hand side or left hand side? Answer in the comment. Next. The greater the number, the lesser is opposite. Suppose मैंने बोला यहाँ पे लिखा है 4 is less than 2, right? 4 less than 2 है. क्यों? क्योंकि 2 के right side में 4 है. 2 के right side में 4 है. Right? So that's why. But -4 is less than -2. Why? -4 is less than -2. -4 छोटा है क्योंकि -4 -2 के लेफ्ट में आता है, राइट?
यहाँ पे लेफ्ट में आता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज दिस, राइट, इसका अपोजिट होगा -9999। When I say -999 is greater than 1, the when I says -999 is less than 1. Okay. सो पॉजिटिव से निगेटिव नंबर हमेशा छोटा रहता है, वो तो होता ही है। -4 इज लेस देन 4, ये सॉरी इट इज ग्रेटर देन आ गया। -4 is always less than 4, okay, but -4 is also less than -3, -2, -0, 1, right? ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ नंबर लाइन पोजिशन लेफ्ट एंड राइट। ये जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे और समझेगा। नाउ दिस इज वेरी न्यू, एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस। ओके, बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी इंटीजर को पॉजिटिव में चेंज कर लेता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। सो जैसे -2, मॉड्यूलस ऑफ -2 विल बी 2, मॉड्यूलस ऑफ 3 इज पॉजिटिव, उसका भी 3 ही रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ 0 विल बी 0। सो बेसिकली जब हम पॉजिटिव निगेटिव साइन जो होता है उससे मॉड्यूलस करते हैं तो उसे 2 कर देते हैं। -121 मॉड्यूलस किया तो इसका आंसर आ जाएगा 121। ये आप सिंप्लीफाई में ज्यादा यूज करोगे। ओके, दिस इज ऑल्सो अ न्यू टॉपिक। इन competitive exams you have a different topic, altogether different topic of squares, square roots, cubes, cube root, but यहाँ पे हम एक quickly देख लेते हैं। If we multiply the same number again and again, we can write it into its power form. Its power form. So 2 into 2 into 2 is 2 raised to 3. Okay, 2 raised to 3, इसे क्यूब भी बोला जा सकता है। 2 क्यूब, 2 बेस है और 3 को कहते हैं पावर। 2 बेस है, बेस क्या है 2 और पावर कितना है 3। सो इफ आई राइट दिस लाइक दिस, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by, I am multiplying 3 5 times. So what will be the, how I am going to write 3 is a base. How many times I have multiplied 5? Okay. Similarly, if I say 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 6 times I have done. So base is 2 and power is 6. What will be the answer? It's a normal multiplication. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. The answer will be 64. हमें सिर्फ जितना ऊपर पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, now it is an important rule. Rule of any negative, the result of any negative integer with power of an odd positive integer is negative. For example, if I say -2 है, ओके, -2 है, मेरा 2 इस पेन से कभी ठीक नहीं आता है। आई नीड टू प्रैक्टिस राइटिंग 2। -2 रेज टू 3, उन्होंने क्या बोला है कि और पॉजिटिव इंटीजर पावर चाहिए, तो हमने 3 ले लिया। इसका क्या हो जाएगा, -2 multiplied by -2 multiplied by -2. Now I assume that you will be knowing multiplication of integers. Okay, so -2 into -2 is actually 2 into 2 4, right? Minus minus निकल जाएगा and 4 into -2. Now 4 का साइन पॉजिटिव है, 2 का साइन नेगेटिव है, तो साइन इधर नेगेटिव ही आएगा और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। सो रिजल्ट अपना आया नेगेटिव -8। ओके, बट अगर यही इवन पॉजिटिव नंबर रहा, सो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, रेज टू 4, इसका मतलब क्या है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, राइट? अब -2 इंटू -2 इज माइनस माइनस साइन निकल जाएगा, हो जाएगा 4, राइट, इंटू -2 इंटू -2। अब 4 इंटू -2 क्या होगा, बोथ साइंस आर डिफरेंट, सो इधर आ जाएगा साइन माइनस, 4 इंटू 2 8, राइट, इंटू, अब ये अपना -2 रह गया, फिर से लिख दिया। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, अगर दोनों माइनस माइनस है तो वो निकल जाता है और पॉजिटिव बन जाता है,
एंड 8 2 जा 16. सो अब में आंसर आया +16, पॉजिटिव 16. सो अगर एनी नेगेटिव, -2 वाज अ नेगेटिव नंबर, राइट, नेगेटिव नंबर, उसका पावर अगर ऑड है तो हमें नेगेटिव आंसर मिलता है, अगर उसका पावर इवन है तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है. Okay? ये आपको प्रैक्टिस कर करके आएगा, प्रैक्टिस कर करके आएगा. Let's go to the solve examples which are in the book. Find the smallest number out of the following. Smallest चाहिए हमें. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 है, which is negative 4, 15, 0 and -7. So we all know that कि नंबर निगेटिव और पॉजिटिव है तो स्मॉलेस्ट नंबर निगेटिव में होंगे. सो वी नो दैट 0 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 15 यहाँ पे आएगा, राइट, नंबर लाइन पे. सपोज दिस इज द नंबर लाइन. देन -7 यहाँ पे आएगा, पहले -7 आएगा, देन -15. दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड. सो कैन यू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? जो एक्सट्रीम लेफ्ट, क्योंकि हम जब भी लेफ्ट में जाते हैं हमारी वैल्यूज, नंबर्स की वैल्यूज कम होती है. तो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है? -15. दैट्स व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. अब ये आप हमेशा नंबर लाइन तो नहीं ढूंढोगे, तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि पॉजिटिव नंबर 4 है, 15 है. ऑब्वियसली ये नहीं है. 0 इज अगेन वोंट बी देयर, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइंस और निगेटिव नंबर ऑलरेडी है. तो ये निगेटिव नंबर में से जो देखना है कौन सा, 15 एंड 7. तो 7 अगर पॉजिटिव है और 15 पॉजिटिव है तो वैसे देखा जाए तो 15 इज ग्रेटर देन 7, पर यहाँ पे उल्टा है, -15. और हमने क्या सीखा है? द ग्रेटर द पॉजिटिव नंबर, लेसर इज अपोजिट. तो 15 अपोजिट आ जाता है, -15. दैट्स व्हाई द स्मॉलेस्ट नंबर इज -15. ओके, यहाँ पे -7 आप नहीं बोलोगे. अगर ये पॉजिटिव होता, अगर इधर 7 होता तो 7 इज लेस देन 15, बट -15 इज लेस देन 17. यहाँ पे लेस देन चाहिए. हाँ, नेक्स्ट. What is the sum of 3246 minus 27? Okay, now here how the equation will be written? 3246 plus minus 27. अब आपको ब्रैकेट का रूल पता है. ब्रैकेट का रूल क्या है? अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर निगेटिव है तो हमारी इक्वेशन हो जाता है 3246 प्लस माइनस -27. आपको ये याद रखना चाहिए, अगर प्लस बाहर है और अंदर माइनस है तो वो माइनस हो जाता है. अगर प्लस बाहर है और अंदर भी प्लस है, नो प्रॉब्लम, वो प्लस ही हो जाता है, राइट. अगर माइनस बाहर है और प्लस अंदर है, दैट इज टू डिफरेंट दिस, देन इट बिकम्स माइनस. इट बिकम्स माइनस. अगर माइनस बाहर है और ब्रैकेट में भी माइनस ही है तो इट बिकम्स प्लस. ओके, तो ये रूल आपको याद रखना है. अब इट इज अ नॉर्मल नॉर्मल दिस वन, 3246 minus 27. So can you find out the answer? Can you find out the answer? It will be 3219. Okay, 3219. Next slide. What is the addition of -48 and -57? -48 का addition, -48 and -7. How will we write? -48 addition करना है, right? -57. Okay. Now you can write this way also, or the first one I have written. Now using bracket rule. Bracket rule क्या है? अगर ब्रैकेट में माइनस है और बाहर प्लस है, दोनों साइंस अलग हो गए, हम माइनस दे देंगे, -57. अब क्या रूल है इसका? जब दोनों साइन माइनस होते हैं, दोनों साइन माइनस होते हैं, हम करेंगे एडिशन, पर साइन देंगे माइनस का ही. ओके, सो 48 प्लस 57 हम करेंगे. सो 8 ओके, 105, बट आंसर आएगा -105, क्योंकि द रूल इज
The rule is when both signs are addition, you will do addition but the sign will be positive. तो आप addition ही करोगे पर sign positive होगा. Both signs are negative, that time you will do addition only but the sign will be negative. जब दोनों डिफरेंट साइंस रहेंगे, राइट, तब इस बारे में आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, पर यहाँ पे साइन आएगा जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यही इक्वेशन ऐसे होता, okay? तो मेरा आंसर क्या आता? सो 57 minus 48. Now what will be my answer? What I will do, both the signs, यहाँ पे minus है, यहाँ पे plus है. So what I will do, I will do the subtraction. So 57 minus 48. What will be your answer? 9. Okay. So मेरा आंसर आएगा 9. बट मेरा साइन कौन सा आएगा, इसमें से नंबर कौन सा बड़ा है? 57. तो +1. ओके, यहाँ पे नंबर आएगा +9. ओके, सो दिस इज हाउ व्हेन यू विल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये सारे रूल्स याद रखेंगे आपको. एक ही टाइम में ब्रैकेट का रूल याद रखना है, ये प्लस माइनस का रूल याद रखना है. ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 23 एंड -43? ओके, हमें डिफरेंस बोला है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 23 डिफरेंस मींस हमें निगेटिव करना है, एंड -43. अब फिर से ब्रैकेट रूल, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस है, इट बिकम्स प्लस. सो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन? 23 + 43, दैट इज द आंसर इज 66. प्रीटी सिंपल. अब आपको हमेशा इंटीजर्स में ना इस टाइप के ही इजी एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे. आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कब मुझे एडिशन करना है, कब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है और कौन सा साइन देना है. आई विल रिपीट अगेन. अगर दोनों प्लस प्लस हो तो आपको क्या करना है? प्लस ही करना है और सिंबल आएगा प्लस. अगर दोनों माइनस माइनस हो, आपको एडिशन ही करना है पर सिंबल आएगा माइनस का. अगर प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो, तो इन बोथ केस में आपको सब्ट्रैक्शन करना है पर बड़े नंबर का साइन यहाँ पे आ जाएगा. इट कैन बी प्लस और माइनस. ओके, नेक्स्ट. What is the difference between -58 and 67? So how will you write? -58 or -67. Now, see, यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें कुछ ब्रैकेट वगैरह की जरूरत नहीं है. आप माइनस माइनस आप क्या करोगे? आप करोगे एडिशन ही करोगे. सो 58 + 67 मैं अभी डायरेक्टली नहीं कर रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए. सो आंसर आ गया 125, पर यहाँ पे साइन आएगा माइनस, क्योंकि वी हैव बोथ माइनस माइनस. ओके, what is the multiplication of -15 -17? Let's write the equation first. आप न्यू हो तो इक्वेशन हर बार लिखिए. ओके, -15 and -17. अब what is the multiplication rule? अगर आपका दोनों साइन प्लस है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन करोगे, साइन आएगा प्लस का. अगर दोनों साइन माइनस है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन ही करोगे पर साइन आएगा प्लस का. माइनस माइनस चले जाते हैं. अगर दोनों साइन अलग अलग है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन ही करोगे पर साइन माइनस का आएगा. यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं देखेंगे हम, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में देख रहे थे वैसे नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे? हम मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे, पर अगर साइन डिफरेंट है तो हमें माइनस साइन देना है. सो व्हाट इज इट? यहाँ पे साइन डिफरेंट है या सेम है? सेम है. अगर ये केस है तो ये केस में हम पॉजिटिव साइन ही देंगे. एंड 15 into 17 will be 255. 250. Our answer is +255. Okay. Next slide. What is the division of -235 and 5? -235 divided by 5, or you can write it -235 divided by 5. अब यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन जैसे ही रूल्स है, यहाँ पे भी सेम रूल्स है. अगर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्लस, डिवाइड बाय प्लस है तो आप क्या करोगे? आप डिवाइड ही करोगे पर प्लस का साइन आएगा. माइनस, डिवाइड बाय माइनस है तो आप क्या करोगे? डिवाइड ही करोगे पर प्लस का साइन आएगा. यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लीकेशन जैसे ही है. ओके,
अगर आपके पास प्लस अलग अलग है, आप क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे। ठीक, ऐसे हो गया, अलग अलग साइंस है, आप डिवाइड ही करोगे पर साइन आ जाएगा माइनस का। राइट, यही चीज हमने प्रीवियस इसमें पढ़ी थी। राइट, दोनों के साइन अलग है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है पर माइनस साइन आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे दोनों के अलग अलग साइंस है, आपको डिवाइड ही करना है पर माइनस साइन आ जाता है। सो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये -235 है और ये 5 है, ओनली 5 इज +5, तो आपका तो साइन तो माइनस है, इतना पक्का है। अब आप नॉर्मल डिवीजन कर लीजिएगा, विच इज 235 डिवाइड बाय 5, विच बिकम्स 47। Okay, so -47 is the answer. Now here comes the power. What is -2 to the power of 3? Okay, so हमें पता है हमें कैसे लिखना है, -2 इंटू -2 अब हम मल्टीप्लीकेशन का रूल ज्वाइन करेंगे, पहले तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ओके, -2 इंटू -2, दोनों साइन सेम है, पहले तो मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, साइन कौन सा आएगा, दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव साइन आ गया। अब हमारा ये -2 रह गया, वो नीचे ले लो। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ही करना है, सो 4 2 8 तो लिखेंगे ही हम। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस साइन है माइनस साइन है, दोनों अलग अलग साइन है, तो इधर हो गया माइनस, माइनस से। अब आपको याद है हमने शुरुआती में बोला था कि कोई भी निगेटिव इंटीजर का और अगर पावर रहता है तो निगेटिव आंसर आता है। राइट, तो व्हाट इज द आंसर, -8। okay, let's go to the next slide and this is simplify। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले सिखाया था करली ब्रेसेस, बॉडमास में, बॉडमास के वीडियो में है, बॉडमास के वीडियो की लिंक मैंने नीचे दे दी है। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। और हमें बॉडमास में हमने क्या सीखा था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ओ फॉर ऑफ, और मैंने बिडमास भी बोला था, आई, यहाँ पे आई फॉर इंडाइसिस, इंडाइसिस मीन्स एक्सपोनेंट्स, पावर, उसे इंडाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट टू राइट में जो पहले आएगा, आइदर डिवीजन, वो पहले हम करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट टू राइट में जो पहले आएगा वो हम करेंगे। सो नाउ व्हाट इज द इनर मोस्ट ब्रैकेट, इनर मोस्ट ब्रैकेट ये है। राइट, हमारा ये भी है पर हम पहले यहां से चालू करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस सिंप्लीफाई क्वेश्चन, सी नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले तो आपको इक्वल टू देना है, आपको कहां तक लिखते जाना है जब तक ये ब्रैकेट आपको सॉल्व नहीं करना है। तो मैं लिखूंगी 23 माइनस ओपन ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -15 डिवाइड बाय in the bracket -3 plus 5 open bracket 6. Now here I am going to solve. Now see, it's a bracket rule. ब्रैकेट में आप देखोगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो इसका पूरा साइन हो जाएगा प्लस, सो इट बिकम्स 7, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे दो ब्रैकेट क्यों क्लोज हुए हैं, क्योंकि ये 7 -7 वाला हमने वो निकाल दिया, तो ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं ये पार्ट फिर से। सो सेम थिंग आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन। यू हैव टू गो वेरी स्लो एंड स्टेडी व्हाइल सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन। अगर आपने कुछ भी एक ब्रैकेट मिस कर दिया, नंबर मिस कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो -15 डिवाइड बाय -3 प्लस 5, 6 प्लस 7 क्या आ गया आंसर, 13। ओके, यहां तक समझा आपको मैंने क्या किया, पहले ये ब्रैकेट ओपन किया, पहले ये जो ब्रैकेट था ये ओपन किया, फिर इसको ऐड किया। नाउ व्हाट इज एक्चुअली मीन 5 इन द ब्रैकेट 13 मीन्स 5 into 13। ओके, ये याद रखो। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स राइट डाउन अगेन, कोई भी जल्दबाजी मत करो। 23, काश मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर पाती, पर आपको क्लास एग्जाम के वक्त ऐसे फैसिलिटी नहीं है, तो मैं इसलिए पूरा लिख रही हूँ। आप तो हर बार ये पूरा का पूरा वैसे कॉपी करते, एक एक सॉल्व करके जाना है। नाउ 15 3 13 5 65,
अब हमारा ये भी ब्रैकेट गया, तो रह गया करली ब्रैकेट और दिस. अब नेक्स्ट इनरमोस्ट इज दिस. ओके, लेट्स सॉल्व दिस. 23 minus, I hope I am copying it correctly, minus curly bracket. अब -15 डिवाइड बाय -3, बराबर कैसे करना है हमें? -15 डिवाइड बाय -3 क्या करना है? सेम साइन है, सेम साइन है तो डिवीजन ही होगा. डिवीजन तो होगा इतना, 3 5 जा 15, पर साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि हमारा रूल क्या है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का, कि हम करेंगे वही एक्टिविटी पर साइन होगा. अगर सेम है माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या आएगा? -15 डिवाइड बाय -3 विल बी 5. और ये अपना +65 भूलना नहीं, सबको साथ लेके चलना है हमें, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. अब इनर मोस्ट क्या है? 5 इन +65. अब इजी हो गया, अब बहुत ही सिंपल हो गया. 23, मेरा ये 3 और 2 का गड़बड़ी है इधर. 5 माइनस 5 + 65 70, राइट? 70. नेक्स्ट 23 माइनस, अंदर 5 है और बाहर 5 है और अंदर 70 है, तो हो जाएगा 5 माइनस 70. ओके, अब क्या होगा? 23 माइनस क्या है? 5 माइनस 70. 5 इज पॉजिटिव. ये बाहर का माइनस मत देखो, अंदर ब्रैकेट में 5 पॉजिटिव है, 70. तो क्या हो गया? -65, राइट? -65. Have I missed anything? So 23 plus 65 minus minus plus हो गया. So our answer 23 plus 65. ओहो, पूरा चला गया, आ गया. चलो, 23 plus 65 is 88 and our answer is +88. ओके, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है? हर एक स्टेप के बाद एक लाइन छोड़नी है, ब्लैंक लाइन छोड़नी है हर एक स्टेप के बाद, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब. क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंफ्यूजिंग होता है. बट इफ यू सी द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स. 15 डिवाइड बाय 3, 6 + 7 इस टाइप के हैं. सो इट इज वेरी इजी. ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ एडिशन का रूल, सब्ट्रैक्शन का रूल, हम प्रॉपरली ब्रैकेट कॉपी कर रहे हैं कि नहीं. तो ये अगर आप रोज के रोज 10-12 सॉल्व कर लेते हो, बस आपका मैथ सेट हो गया. तो यहाँ पे हम सॉल्व एग्जाम्पल खत्म करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम और एग्जाम्पल सॉल्व सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपको अगर बॉडमास का एक सेपरेट ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिएगा. वी विल सॉल्व 10 to 15 प्रॉब्लम्स टुगेदर, सो दैट आपको आदत हो जाएगी कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, बॉडमास के कैसे लिखना है. ओके, टिल देन हम पार्ट 5 की तैयारी करते हैं. आप ये सॉल्व कीजिएगा. आपको कुछ डिफिकल्ट हो रहा है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये सारा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.